الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بانوار معرفتی برسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ صدق بلغ رسول النبی الکریم نعن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں بفضل خداوندی و پیر مغا آپ اپنی جگہ پر خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو حیاتی تندرستی عطا فرما اور آپ کی جو بھی خواہش اللہ تعالیٰ تو پوری کر دے مولا۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الرحمن کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاہ نام کا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پر جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پڑھیے۔ صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین، وحدہ لا شریک لہ، تو ہی تو اللہ اللہ اللہ، وحدہ لا شریک لہ، تو ہی تو اللہ 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 اللہ، یہ شجر یہ بشر یہ زمین آسمان، لوح کرسی قلم یہ جہاں و جہاں، ہر نفس میں بس تیری آرزو، اللہ 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 اللہ۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی کہہ رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان آپ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اب انشاءاللہ العظیم یہ فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے آج اس نشست میں جو اس صوفیاء کرام کے جو نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے انشاءاللہ، اور اس پہ عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے بہا نعمتوں میں تو 18,000 مخلوقات، یہ زمین و آسماں، یہ شجر اور تمام بنی آدم سے لے کر 1,24,000 انبیاء مرسلین، یہ تمام اللہ کی بڑی بے بہا نعمت ہے، اس کو تو ہم جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ سب سے بڑی اب صوفیاء کرام کے نزدیک یہ کون سی بڑی نعمت ہے؟ وہ یہ سمجھ لے کہ ہم قادری زندہ نوازی، اور جس کو اس بات کو ہمارے فاضل بریلی احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے قادری کر قادری رک قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ تو یہ قادریوں کو ایک بہت بڑی سرفرازی ہے، یہ ان کو بہت بڑا نعمت اللہ نے عطا کیا، وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی وحدانیت کو اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے زبان بھی اقرار بلسانی اور اس کے بعد تصدیق بالقلب عطا کیا، اور ہمارے اولیاء کرام کا بہت بڑا صدقہ کہ ہمیں وہ روح کا بھی پاسورڈ عطا کیا، یعنی روح سے بھی کس طرح کلمہ ادا کیا جاتا ہے اس کا بھی پاسورڈ، اور وہ کس طرح ادا کرنا ہے، اس کا کیسا خیال ہے اور کیسا اس کا نقشہ ہے، یہ بھی ہمارے قادری زندہ نوازیوں کا کرم ہے۔ اسی لیے فاضل برید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وہ قدرت نما کا جلوہ ہمارے بزرگان دین نے تو اتنا بڑا اور اتنا اچھا ہنر ہم کو سکھا دیا
اس میں ہم پوری زندگی کو لگا دے تو کم ہی ہے، کمی ہے، کمی ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ اللہ کی کون سی نعمت ہے، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمارا جو ہے ابلیس جو ہے، جو بنی آدم کا بھی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ہم تمام مریدوں کا بھی بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ دشمن کیا کھیل رہا ہے کہ ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ہمارے جسم کا مینوفیکچرر، یہ بنانے والا، یہ معلم الملکوت جو ہے ہمارے جسم میں غفلت ڈال دیتا ہے۔ اس کے لیے ہر جمعہ کو آپ کو انہیں کوڈ بھیجا جاتا ہے اور آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ انہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بارے میں کہا کہ آپ اذان دیجیے، تو بلال حبشی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ اذان دیتے ہیں۔ آپ کے اذان سے 7 زمین 7 آسمان لرزہ اٹھ جاتی تھی اور حیات ہو جاتی تھی۔ تو ابھی اسی طرح ہم قادری زندہ نوازی بھی نے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، تو قادری کر ہے نا، پیر نے کر دیا، ابھی قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا، یہ دو مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تو وہ قدرت نما کا کرم ہو جائے گا اور آپ کی بھی زندگی سنور جائے گی، اور یہ فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے کچھ بتلا رہا ہوں وہ بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ ہے کہ قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، تو ہمیں یہ رکھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر کوئی پیر کامل نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں پیر کامل ہو تو سمجھ لو کہ وہ یہاں سے اس کو ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ تو ہم فقیروں میں ہمیشہ فقیر جو ہے جتنا وہ اعلیٰ مرتبے میں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عاجزی کی ساری کا پیکر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سونا کوئی دیکھ لیجئے، وہ 14 کیرٹ 15 کیرٹ 16 کیرٹ 18 کیرٹ بہت ہی مضبوط رہتا ہے، اب جب وہ لطیف بننے جاتا ہے تو 24 کیرٹ کا بن جاتا ہے، تو جو 24 کیرٹ کا مالک ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ لطیف بن جاتا ہے، یعنی آپ کو ایک دم نرم بن جاتا ہے، سافٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک ہی جن کو پیر کہلانے کا حق رکھتے ہیں، باقی کوئی بھی پیر نہیں۔ اور ہم جب مرید بنانے کے وقت میں ہمارے بزرگان دین نے بھی یہی سکھایا کہ یہ ہاتھ ہمارا نہیں، یہ ان کے ہمارے پیر کا ہاتھ ہے، یہ غوث الورا کا ہاتھ ہے، اور آخر علی کرم اللہ وجہہ کا ہاتھ ہے، اور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جو بھی مرید بن رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ تمام تاجدار انبیاء صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں، اور قرآن کی قول بھی پورا ہو رہی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی جس کسی کے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں گویا اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ابلیس ہر جگہ فتنہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے، یہ گروپ بازی کر کے، اور یہ گروپ بازی جو ہے فتنہ کو پر لے جاتی ہے اور فتنہ کر کے جو ہے ہماری طاقت کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم تمام کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیر کامل کا مقام کو پانے والے اور مکمل مقام کو پانے والے وہ سیاح لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماہ ربیع الاول میں یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا اخراج عقیدت یہی ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سیاح لامکا کو اس طرح بنایا جس سے کوئی ان کا کوئی مثل پیدا ہو نہیں سکتا، نہ پیدا ہوگا، نہ قیامت تک کی پیدا ہوگا، کیونکہ آپ سرداریت کا وہ عزم لے کر آئے اور وہ سرداریت کا وہ مقام لے کر آئے، وہ کسی کو بھی ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن کچھ فتنہ پرور لوگ سوچتے ہیں کہ ہم پیر ہے، یہ پیر ہے، وہ انا کے کبوتر بن جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں بول سکتے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے والے وہ ہے سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خالق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اور یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سراپا حق ہے۔ لیکن ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دفیر، پیر عادل بابا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے دفیر، ہمیں جو ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے رہبروں نے جو ہمیں نسبت عطا کیا، وہ ایک
कामिल पीर से, जिस हदीस कुदसी भी है, फर्दुल इंसान यतलुबुहा शेख कामिलतुन वफी मकानिन वफी रूमिन वफी शामिन वफी अजमिन, यानी इंसान पे फर्ज ऐन है कि पीर कामिल की तलाश करे, अपने घर के बाजू में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हम गरीब हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमको हम मदीना नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने वो आला मकाम हमको अता कर दिया कि वसीले से, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला कह रहा है कि वसीले से आप ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर हाजिरी दे सकते हैं। लेकिन हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हमको सच्चा पक्का कादरी बना दिया और कामिल पीर से। यानी क्या हो रहा है, राज क्या है, सूफी का पॉइंट ये हो रहा है कि कामिल पीर चाहिए ना, तो कामिल पीर कौन है, वह सयाह लामका नाजिश हर दो जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मुरीद बना दिया। अगर कोई सोचता है तो अलग बात है, तो लेकिन ये हमारी ये सूफी पॉइंट आपके सामने फकीर जिंदा नवाज पेश कर रहा हूं कि आज के ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे के सदके तो फिर ये ने हमारे बुजुर्गान दीन ने एक कामिल पीर के हाथ में मुरीद करा दिया। हमारा पीर कामिल हिस्से पता चलता है। अब जो है ये कामिलियत को हमें अपने जिंदगी में बरकरार रखना है, क्योंकि शेर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना खाकी फितरत नूरी है नारी है, तो अमल करना पड़ेगा। बोले मैं कादरी हूँ बोल के कोई लेबल हमारे पास नहीं है, कोई हमारा वसीला नहीं है, तो उसको किस तरह करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज एक सूफी पॉइंट दे रहा हूँ, वो ये है कि जब भी अजान की सदा सुने तो ये दिल में सोच ले और समझ ले कि इन्हें हमारा पीर हमको बुला रहा है, हमारा पीर हमको बुला रहा है। अब जब हमारा पीर हमको बुला रहा है समझेंगे तो यकीन कामिल क्या होगा कि आपका पीर की मोहब्बत आपके दिल में जाग उठेगी, आपका पीर की तस्वुर आंख में जो झलकने लग जाएगी और आपका दिल और आपका रूह कलमा पढ़ने लग जाएगा। तो कुरान की आयत इधर मुकम्मल हो जाती है, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। अब नमाज कायम करने के बाद वहां जाकर जो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े तो बात है। और दूसरी एक पॉइंट उधर ये है कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देता हूं ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब देखेंगे तो गवाही देंगे, तो आप 40 दिन तक मेहनत करें इंशाअल्लाह। एक सूफी पॉइंट दे रहा हूं, ये फकीर जिंदा नवाज ने ताजदार मदीना को देखने के बाद गवाही देना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को अल्लाह एक है बोल के गवाही देना। अब अल्लाह को देखे नहीं, अब किस तरह गवाही दे रहे हो। अब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर गवाही दे तो इंशाअल्लाह हर जिंदा नवाजी कोशिश करेगा, 40 दिन कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह 41वें दिन के अंदर वो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इन्हें मरहबा मरहबा कुर्रतुल ऐन बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने का उसको, इन्हें मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कि मेरे आंख के ठंडक है। अल्लाह ताला हर सुन्नी को, हर जिंदा नवाजी को ये अल्लाह ताला मौका नसीब अता फरमा। तो इसके लिए अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना खाकी फितरत नूर ये नारी है। अभी इसके उमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, हमारे सयाह लामा का नाजिश हर दो जहां अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा रहमत किस तरह बनकर आए। जब तुमने पीर का याद करते साथ ही तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत जो उभर जाएगा, तुम्हारे आंखों में वो पीर का तस्वुर आएगा, तो और तुम्हारे सांसों में ये कलमे तैयबा की माला चलती रहेगी। तो इससे बढ़कर रहमत और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और रहमत क्या चाहिए। हम फकीरों के लिए, हम कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, वो कुदरत का करिश्मा अब्दुल कादिर हमारे लिए कितना बड़ा करम कर रहे हैं कि हम पर हमारे जो है तस्वुर में हमारा पीर बस रहा है, हमारे दिल में पीर की मोहब्बत उभर रही है, हमारे सांसों में और हमारे दिल में और हमारे रूह में कलमे तैयबा की रवानगी हो रही है और आरा जारा शुरू हो रहा है। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि फबी आलाई रब्बिकुमा तो कज़िबान, अल्लाह की नेमत को क्यों झुटला रहे हो, क्यों कैसे झुटलाओगे। तो ये सबसे बड़ी रहमत नेमत है, ऐसी नेमत ये सिर्फ कादरी जिंदा नवाजी में है। इसके लिए तुम्हारे जो है दोस्तों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे अड़ोस पड़ोसों को ये दावत हक दावत फिक्र दे और तमाम को कलमे तैयबा से
आरास्ता वो पैरास्ता करे, पैरास्ता कर कर, लेकिन ये दावत देने में आप इधर हम लोग गलती करते हैं कि फला इब्ने फला से मुरीद नहीं, आपको ताजदार मदीना से मुरीद किया जा रहा है। आपको ये पॉइंट दिया जा रहा है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुरीद किया जा रहा है। तो ये पॉइंट को देकर आप जो है खिदमत खल्क करे तो इंशाअल्लाह तो ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसको झुटलाए नहीं कि हमें मौका मिला। हम क्या कर रहे हैं कि नफ्स परस्ती करते हुए इस सिलसिले को तबाह ताराश कर रहे हैं। हमारा मिशन ये है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला सर हिंदुस्तान ही नहीं, आलम में बैन अक़वामी सतह पर इसको काम करना चाहिए। तो काम करने के लिए आपको मेहनत करना है। तो मेहनत क्या होगा, घर ही से मेहनत करेंगे, आपके रिश्तेदार से मेहनत करेंगे, आपके अड़ोस पड़ोस से मेहनत करेंगे, तो ये मेहनत की कहा जाएगा नेमत, क्योंकि अल्लाह ने इतना करोड़ों करोड़ों का नेमत आपको दे दिया कि आपके सांसों में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दौड़ रहा है। और अल्लाह अल्लाह की रसूल ने, हर आदमी कहता है अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात करो, तो हम कहाँ गलत काम कर रहे हैं, कौन सा शिर्क कर रहे हैं, कौन सा कुफ्र कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ रहे हैं, तो इससे बढ़कर कौन सा अमल होगा। लेकिन क्या है, समझ समझ में फेर है, समझ आने को देर है, समझ आया तो बेड़ा पार है। और इससे बढ़कर कोई नमाज नहीं हो सकती है, क्योंकि अकीमुस्सलाह, क्योंकि इस मस्जिद के अंदर नमाज को कायम किया जा रहा है। यही हमारे जो मुरीद होने के लिए वक्त में हम तमाम को समझाते हैं। तो ये समझ लीजिए, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। और दूसरी बड़ी बात, ईसाल सवाब, इन्हें ईसाल सवाब का बोले तो आप जिसको भी दावत हक दे रहे हैं तो आपको ईसाल सवाब मिल रहा है। वो ये सिलसिला जब तक ता कयामत तक चलता रहेगा, आपके कब्र में ईसाल सवाब जब भी वो जिक्र करता रहेगा, आपको उसका फायदा मिलता रहेगा। तो फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान, अल्लाह की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, इब्लीस बोलता है नहीं भाई तुम नहीं मुरीद बना, तुम ही ठीक है, दूसरे को मत बोलो, और इसी के अंदर अपने को फना कर रहा है। आपको कोशिश करना है कि हर को ये दावत हक, कुरान कह रहा है लऊ दावतुल हक लऊ दावतुल फिक्र, यानी जो है ये दावत हक है, ये दावत फिक्र है, इसको जो है हिम्मत से, अज़्म से आपको सबको देना है। मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत इश्क अल्लाह सदा रहे या रसूलुल्लाह, प्यार मोहब्बत इश्क अल्लाह सदा रहे या रसूलुल्लाह, ये नारा लेते हुए ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। इसी के लिए इन्हें वहदहू ला शरीक लहू अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह, यानी वो ला शरीक को हमेशा अल्लाहु अल्लाहु बोलने का काम करना है। तो हमें खिदमत खल्क करना पड़ेगा, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अहल अयाल को इसका दावत सुकून देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, उनकी नमाज को कामयाबी की तरफ ले जाना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा तो नामुमकिन बात है। और पीर की मोहब्बत को देना पड़ेगा, जब तक पीर की मोहब्बत कल्ब में नहीं होगी तो कुछ होना नामुमकिन है। इसके लिए जरूरी है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो आपको हिम्मत करना है, और हिम्मत क्या करना है, इधर उधर टाइम पास करके कुछ होने वाला नहीं है। अब जब दूसरी बड़ी बात है कि नमाज का ख्याल करते हुए, दो नमाज, एक कायम की नमाज और एक वक्ती नमाज, कायम का नमाज भी होना चाहिए। गाफिलों के जुमरे में दाखिल मत हो जाइए। जब आपको अजान सुनने के बाद जब आप में पीर की मोहब्बत जाग उठ जाती है, पीर की तसव्वुर जाग उठ जाती है, पीर का कलमा जाग उठ जाती है, तो आप जो है जरा वक्त दे, जरा वक्त दे, वक्त देकर उसके बाद वजू कर ले, पाक हो जाए और नमाज भी अदा करे। और नमाज अदा करते करते आप में का 1 घंटा 2 घंटा ये सुरूर बाकी रहेगा, क्या नुकसान होगा। फ्री में क्या है, ये हमारा सिलसिला कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, ये गौस पाक का कितना बड़ा करम है। हर चीज जो आसानी से मुहैया किया जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज आपको फ्री मिल रहा है। बस लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल करना है। तो अपने ख्याल में, ख्याल यार में दिल बेकरार होता है, तड़प के बाद ही दीदार यार होता है। तो ख्याल यार होना चाहिए, तो ख्याल यार में अल्लाह को बिठा दो, अल्लाह के साथ रसूल अल्लाह को बिठा दो। जब दोनों काम हो जाएगा, जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला कुरान की आयत को मुकम्मल करेगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदिल करम सलातु व सलाम दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। तो तमाम मुकम्मल हो जाएगा। जब तक तुम अमल नहीं करोगे, तुम एक कदम नहीं बढ़ाओगे, तो अल्लाह 10 कदम किस तरह बढ़ाएगा।
तो अमल की तरफ चलिए। तो ये सूरत रहमान की यह आयत करीमा आप तक लाया हूँ। और दूसरी भी एक राज की बात है, हर आदमी बोलता है कि घर में बहुत परेशानी है, कर्जदारी है और खाने का मोहताजगी है और तमाम परेशानी है। तो ये जो है रहमान या रहमान या रहमान या रहमान दोपहर को दोहर के टाइम पर 101 मरतबा बोलकर आप जो है हर हफ्ता हर रोज बोलिए, देखो आपके घर में बरकत ही बरकत होगा। और हो सके सूरतुर रहमान की सूरत को पढ़िए। नहीं तो आज जो है यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल वर्ल्ड का जमाना है, हर के पास आईफोन मौजूद है या एंड्रॉयड फोन मौजूद है। बस सूरत रहमान को लगा दीजिए सुबह और सूरतुल वाक़िया को लगा दीजिए, देखो घर में कितना बरकत ही बरकत होगा। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। ये आयत करीमा उतर जाती है तो जो दुनिया जो झंझलाट यानी दुनिया में एक जो है हरकत हो जाती है। तो ये फबी आई रब्बी कुमा तो कसीबान को यानी कितनी बड़े अल्लाह ताला कह रहा है कि कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। आप मुरीद होने के बाद आपको आपके पीर ने आपकी जबान को जिंदा किया, आपके दिल को जिंदा किया, आपके रूह को जिंदा किया, आपके आंख को जिंदा किया, आपके कान को जिंदा किया, आपके हाथ को जिंदा किया, आपके पैर को जिंदा किया। यानी इंसान के बरज़क का कलमा ही नमूना है, मुकम्मल करके दिया। लेकिन फिर भी आप जो अमल नहीं करेंगे, नहीं बाबा मैं क्या करूं, तो नहीं होगा। तो इसके लिए अमल के मैदान में उतरना है, क्योंकि ये सूफी बनने का जो क्लास है फॉर्मेट लेके चल रहे हैं, यानी सूफी टॉक है। तो सूफी बोले तो पाक होने के टॉक है, आप पाक हो जाइए तो अल्लाह आप पर करम करेगा और रहमतुल आलमीन का करम होगा। जब करम होगा तो दो जहां में आबादी ही आबाद रहेगा। आप भी 1000 साल बाद भी बोलिए कि मेरे लाशा को देखो, जिस लाशा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो कभी उस पर कयामत नहीं आएगी, वो कभी फना नहीं होगा। यही इसके लिए फना से बका हो मजा जब मिलेगा, लगा खुद में गोता खुदा जब मिलेगा। तो फना होने वाला चीज है, अब उसको बका करना है। इसके लिए फना से बका हो मजा जब मिलेगा, लगा खुद में गोता खुदा जब मिलेगा। तो लगा खुद गोता, तो इसके लिए अल्लाह ने कितना आसान कर दिया है कि हमको हर चीज से यानी अजान सुन रहा है तो उस पर जरा ख्याल रखना है। नमाज की हालत में देखना है, तो लोग बोलते नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इब्लीस हमारा खुल्लम खुल्लम दुश्मन है। तो उसके लिए हमारे गंदगी को, इसके लिए पिछले क्लास में बोला कि अंदर की लाइट को जिंदा करना है, अंदर के कान की आंख को ताकत को जिंदा करना है, अंदर के कान की ताकत को जिंदा करना है। क्योंकि हमारे में इतना कचरा भरा हुआ है कि घर साफ ही नहीं हो रहा है। जब तक साफ नहीं होगा नया चीज आएगा किस तरह। इसके लिए लोग अभी बोलते हैं तो बयान भी सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं, कुछ बोले कलाम पढ़ने का है, कुछ ये करने का है, कुछ वो करने का है। जिनके ख्यालात को इब्लीस बदल रहा है। लेकिन ये क्या है कि पीर का तसव्वुर मिल रहा है, पीर के तसव्वुर से भरेंगे, पीर के मोहब्बत से भरेंगे, पीर के इश्क से भरेंगे, पीर के रहमत से भरेंगे, पीर के बरकत से भरेंगे, पीर की मंजिल से भरेंगे, पीर की विलायत से भरेंगे। ये हमारा नियत होना चाहिए। ये अल्लाह की नेमत है। क्योंकि सबसे बड़ी नेमत ये है कि हमें पीर का दीदार कर रहे हैं। यानी इन्हें ये पीर्स में अल्लाह के रसूल का दीदार करने का मौका ले लीजिए। तो ये कुरान पाक भी अतीउल्लाह अतीउ रसूलुल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, रसूल अल्लाह की अताअत करो, वक्त के अमीर की अताअत करो। तो यह वक्त के अमीर की अताअत करने से आप रसूल अल्लाह की भी अताअत हो रही है और अल्लाह की भी अताअत हो रही है। लेकिन हम नहीं समझते हैं। इब्लीस बोल रहा है कि आपके जैसा है, आपके जैसा है, और ये आपके जैसे के अंदर तमाम फना हो रहा है, इसलिए बका को होना पड़ेगा, इसको फना करना पड़ेगा। फना से बका हो मजा जब मिलेगा, लगा खुद में गोता खुदा जब मिलेगा। तो इसके लिए अल्लाह की नेमत है कि हमारे को एक हमारे सामने एक पीर कामिल बनकर आए जो अल्लाह के रसूल से मिला रहे हैं। तो उनका हाथ छोड़कर हम दूसरे के हाथ पकड़ रहे हैं, हमारे हाथ को नापाक कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि ये पीरान उज़्ज़ाम का में मतलब कि तादार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम दामन नहीं छोड़ेंगे। यानी ये ईद मिलाद नबी में ये हमें अज़्म करना है। इंशाअल्लाह ये अज़्म के साथ अब चलेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी होगा। दुआ करते अल्लाह ताला हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि तादार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफ़ैल ये ईद मिलाद नबी के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह ताला ने हमें मौका नसीब अता फरमाया कि आपके सामने कुछ लब कुशाई करने की हमने जुरात की। अब तो ये जो बात हमने समझा इस पर अमल कर इंशाअल्लाह तमाम कादरी जिंदा नवाज़ और तमाम अहले सुन्नत वल जमात जो भी सिलसिले से निस्बत रखने वाले हैं, ये समझ लीजिए कि जब भी जो अजान होगा तो समझ लीजिए कि आपका पीर कामिल यानी ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कर रहे हैं। ये दिल में बस बिठा लीजिए। देखिए आपकी जिंदगी के अंदर एक करिश्मा आ जाएगा, नूर अला नूर हो जाएगा और आपके ऑटोमेटिक बोले मैं जिक्र कर रहा हूँ ये नामुमकिन है।
اللہ ذکر کرا رہا ہے نے خدا بھی ذکر کرتا ہے تمہارا یا رسول اللہ، بڑی تعظیم سے تم کو پکارا یا رسول اللہ۔ تو وہ مقام اللہ تعالیٰ تمام کو عطا فرمائے، اور جو بات ہم نے کیا ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ بات آپ کو اچھی لگی شیئر کریں انشاءاللہ، اور اس چینل کو جتنا ہو سکے آپ سے سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔